Hello, students. Welcome you all to our third session of our chapter number 8, that is, How Do Organisms Reproduce? Students, in the previous session, we have seen sexual reproduction in flowering plants, and then we have seen the meaning of puberty, okay, and then we have seen what are the secondary sexual characters in boys and girls. Okay, today we are continuing with one of the most important topic of this chapter, that is male reproductive system and female reproductive system in human beings. So let us start with these topics. Students, our first topic is male reproductive system. For this male reproductive system, you have to refer the figure 8.10, 8.10 figure on page number 137 of your NCERT textbook. पेज नंबर 137 8.10 फिगर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है. दैट फिगर यू हैव टू ड्रॉ. ओके, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट्स, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स. So which are those parts? Let us see. The male reproductive system consists a pair of testes which produces the male reproductive cells called sperms and the hormone testosterone. Okay, once again, male reproductive system में क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टेस, दो टेस्टेस होते हैं, ओवल शेप में होते हैं. ओके, दो टेस्टेस होते हैं ओवल शेप में. ओके, each testis produce what? Sperms are the sex cells or called germ cells, male sex cells of human being. Okay, and they produce what? Testosterone also. Testes produce sperms and the hormone testosterone. Now these two testes are located in what? They are located in a sac like structure called scrotum. आप नीचे देख सकते हैं, है ना. ह्यूमन मेल के बॉडी के बाहर वाले पार्ट में नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. In that sac-like structure, two testes are present. Okay, there are two testes, pair of testes, and each testis produce what? Sperms. Okay, and the hormone testosterone. And why they are lying outside the body? Because the production of sperm needs a temperature lower than the normal body temperature. ओके, हमारा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स के लिए, इसी के लिए हमारे बॉडी के बाहर होता है ये. ओके, द टेस्टिस लाइज आउटसाइड अवर बॉडी. Okay students, now you can see that there is a thin tube arising from the testis. The tube is called vas deferens. What is this called? Vas deferens. From each testis a thin tube arises which is called vas deferens. This vas deferens joins the testis to the urethra. Testis से लेके कहाँ तक vas deferens जाता है? यूरेथ्रा तक. Okay, the urethra is enclosed in a muscular organ called penis. पेनिस इज द आउटर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ओके, उस पेनिस के अंदर क्या है? यूरेथ्रा है. ओके, नाउ इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड जेनिटल पोर. द आउटर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड जेनिटल पोर, जहाँ से हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं या स्पर्म्स रिलीज करते हैं. ओके, द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स. देर आर टू ग्लैंड्स प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स. दे प्रोड्यूस फ्लूइड्स. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स. ओके, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, लेट मी एक्सप्लेन यू. व्हेन द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स, व्हेन द टेस्टिस प्रोड्यूस व्हाट? स्पर्म्स. दिस vas deferens कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द टेस्टिस टू द दिस यूरेथ्रा. vas deferens स्पर्म्स को कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है? फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा. In that urethra only the seminal vesicles and prostate gland release their liquids. वो अपने fluids release करते हैं. तो ये fluids क्या करते हैं? हमारे sperms को न्यूट्रिशन देते हैं, ताकत देते हैं और उसको मूव करने में हेल्प करते हैं. sperms की मोबिलिटी इतनी फास्ट नहीं होती है. ये जो liquids आते हैं ना, fluids आते हैं from where? From the seminal vesicle and the prostate gland. Those fluids help in the movement of the sperms, and the sperm can easily flow. Okay, easily move in the front direction. Okay, these sperms are, along with these fluids, are ejected by the penis outside the body. You can see the diagram of a sperm. एक sperm cell का diagram देखो. एक sperm cell का head part होता है और tail part होता है. Okay, this is the diagram of sperm, and during each ejaculation, during each release of the sperms, millions of sperms are produced by a male. एक बार में millions of sperms produce होते हैं by a male. Okay students, so this is the male reproductive
सिस्टम। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यू कैन रेफर टू द शॉर्ट नोट्स इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, now let us discuss female reproductive system. What do you mean by female reproductive system? So what are the organs present in female reproductive system? For this you have to refer diagram figure 8.11 8.11 on page number 137 page of your NCERT textbook. Both the diagrams of male as well as female reproductive system are present over there, and you have to draw that diagram. That is very much clear. Okay students, now female reproductive system consists of what? A pair of ovaries. You can see on both the sides. टेक्स्ट का डायग्राम ज़्यादा क्लियर है, दोनों साइड में ओवल शेप में देखो ओवरीज है। ओके, एलमंड शेप देखो, एलमंड जैसे बादाम जैसा होता है ना, वैसे ओवरीज है। ओके, विच प्रोड्यूसेस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओवा और एग्स एंड द हार्मोन ऑस्ट्रोजन। ओके, ये जो ओवरीज है, व्हाट डू दे प्रोड्यूस? ओवरी प्रोड्यूसेस व्हाट? Ovum. Ovum means what? Female sex cell. It is also called egg. Okay, the female sex cells are produced by the ovaries and along with the hormone estrogen. Above the ovaries are tubes called oviducts or fallopian tube. आप देख सकते हैं कि हर एक ओवरी में से एक ट्यूब निकल रहा है. That tube is called fallopian tube or oviduct. Fallopian tube or oviduct. एक ओवरी में से एक ओविडक्ट, दूसरे ओवरी में से दूसरे ओविडक्ट. Both the oviducts unite into a bag-like structure called uterus. दोनों ओविडक्ट कहाँ तक पहुँच रहे हैं? यूटेरस तक. मतलब एग किसी भी ओवरी में प्रोड्यूस हो, वो एग को लेके ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? ओवरी से लेके यूटेरस तक. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट? द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूब इज टू ट्रांसफर, टू कैरी द एग, बिकॉज फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन एग इन अ मंथ. एक महीने में एक ही एग प्रोड्यूस करते हैं. मेल्स की तरह नहीं कि हर बार दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, बट फीमेल ओनली प्रोड्यूस ओनली वन एग ड्यूरिंग 1 month. ओके, तो दिस एग इज कैरिड बाय द fallopian tube, that is oviduct, from the ovary to the uterus. Uterus is a muscular structure and the uterus has an opening called vagina. Okay, uterus opens into a vagina. Vagina is the outermost opening structure. The sperms which are released by the male during the sexual process between the male and the female, वो जो मेल जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना अपने पेनिस के थ्रू, वो स्पर्म्स इस वैजिना के थ्रू ही कहाँ जाते हैं? फीमेल के बॉडी में जाते हैं. The sperms are released in the vagina of the female, and from vagina the sperm goes to uterus, where already what is present? This egg is present. Ovary का जो egg है ना, ovum, वो present होता है. Okay students, so this is female reproductive system. When the reproductive system is asked, आपको डायग्राम बनाने का है और हर एक ऑर्गन का आपको फंक्शन देने का, ऑर्गन के नेम और उसके फंक्शन देने के. दैट इज ओनली सिस्टम. ओके, now let us see the process of fertilization in human beings. Okay, how does the process of fertilization takes place in human beings? First of all, what do you mean by fertilization? When the male and the female sex cells combine, that process is called fertilization. So during sexual intercourse, what is the meaning of the word sexual intercourse? The sexual contact between male and female. Okay, जब male and female sexual contact करते हैं, the sperms from the male enters into the vagina of the female. Male जो है at the end of the sexual contact release the sperms in the inside the vagina of the female. Okay, these sperms slowly transport towards where? Towards the oviduct. And what is already present in the oviduct? Egg, that is ovum. One sperm out of the millions of sperms released by the male, only one sperm fuses with an egg and forms a zygote. आप देख सकते हो, देखो साइड में फिगर है. आप सबसे नीचे वाला फिगर देखो, दैट इज मोर क्लियर. देयर इज अ बिग ओवम. ओवम इज बिगर इन साइज. ओके, और आप देख सकते हो कि एक स्पर्म देखो एंटर हो रहा है अंदर, है ना. उसके ऊपर वाला अगर आप डायग्राम देखो तो देखो ओवम के आजू बाजू कितने सारे स्पर्म्स आए. देयर आर मेनी स्पर्म्स रिलीज्ड बाय द male during one sexual contact, but out of those millions of sperms, many sperms go towards the egg, but only one sperm can enter inside the egg. Okay, देखो एक ही sperm देखो egg के अंदर enter हो जाता है. Okay, तो this process is called fertilization. Only one sperm fuses with an egg and forms a zygote. और क्या बनाते हैं? Zygote. This zygote gets implanted in the uterus. ये जो जाइगोट है वो कहाँ पे जाके इम्प्लांट मतलब अटैच हो जाता है. वेयर? एट द यूटेरस.
ओके। द जाइगोट देन स्टार्ट्स डिवाइडिंग, जाइगोट तो सिंगल सेल वाला होता है, वो धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है मल्टी सेलुलर में, एंड दे फॉर्म एम्ब्रियो। व्हाट डज इट फॉर्म्स? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज कॉल्ड गर्भ, उसको गर्भ बोलते हैं हिंदी में, गर्भ। ओके, मीन्स द फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट। Once the fertilization process takes place and zygote is formed and zygote divides into embryo, means the female is pregnant now. She is now ready to give birth to a child. This embryo, okay, develops into what? Child, slowly slowly. तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर के ब्लड में से मिलता है ना, थ्रू द प्लेसेंटा। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। माँ जो भी खाती है वो उसके ब्लड में जाता है और प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड को मिलता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस टिल 9 months एंड देन द चाइल्ड इज बॉर्न। ओके, you all know that 9 months takes place for the development of a child and then the child is born. So in this way the fertilization in human beings takes place. Okay students, you have to read your NCERT textbook clearly for the full description. Okay students, you can see this figure students if you want to see how a child develops. तो देखो सबसे पहला फिगर जो है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि देखो ओवरी। ओके, ओवरी जब प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर, तो धीरे धीरे वो ओवम जो प्रोड्यूस होता है, दैट ओवम स्लोली स्लोली ट्रांसफर्स। देखो एक बार स्टेप बाय स्टेप वो ओवम ट्रांसफर होके कहाँ तक जा रहा है? यूटेरस तक पहुँचा। ओके, वंस इट रीचेस टू द यूटेरस, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखो लास्ट में वो कहाँ पे अटैच हो गया है? यूटेरस के साथ अटैच हो गया। इम्प्लांटेशन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ओके, यूटेरस के वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाएगा। अभी आप सेकंड डायग्राम देखो, एक बार वो इम्प्लांट हो गया तो स्लोली स्लोली वो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, और चाइल्ड को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? वो प्लासेंटा और द अम्बलिकल कॉर्ड। यू नो व्हाट इज एन अम्बलिकल कॉर्ड? जब देखो चाइल्ड के साथ एक धागे जैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जब मदर के बॉडी के साथ अटैच्ड है। ओके, दैट कॉर्ड, वो जो ट्यूब है जो मदर की बॉडी और चाइल्ड को अटैच करके रखा है, दैट इज कॉल्ड अम्बलिकल कॉर्ड। उस अम्बलिकल कॉर्ड के थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन अंदर जाता है बॉडी के अंदर। ओके, एंड वंस द चाइल्ड डेवलप्स आफ्टर 9 months, तो थ्रू द यूटेरस, आप देख सकते हैं यूटेरस के बाद वेजिना, वेजिना के थ्रू चाइल्ड जो है बाहर निकलता है। सीधा हेड रीजन, पहले हेड बाहर आता है और फिर पूरी बॉडी बाहर आती है आफ्टर 9 months. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड आफ्टर 9 months द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस। तो ये डायग्राम्स हमको नहीं करने के, दिस डायग्राम्स आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दीज 3 डायग्राम्स यू डोंट हैव टू ड्रॉ। ओके स्टूडेंट्स, now students let us discuss one of the important topic, that is menstruation, which takes place in human females. females में menstruation process भी होता है। now what do you mean by that menstruation process? इसके लिए मैंने ये वाला डायग्राम फिर से रखा है मैंने। फर्स्ट वाला डायग्राम देखो, when the ovary releases ovum, that ovum slowly slowly passes through the fallopian tube and reaches to the uterus. और यूटेरस में अगर स्पर्म्स आते हैं मेल्स के थ्रू, है ना, और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन इट गेट्स इम्प्लांटेड टू द यूटेरस एंड द चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस। ओके, बट व्हाट हैपन्स इफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डजंट टेक्स प्लेस? ओके, अगर उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कैन यू सी दैट ओवम? ओके, अगर उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं यूटेरस देखो एकदम थिक हो गया है। यूटेरस एकदम थिक के, यूटेरस इज वेरी थिक विद द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स के साथ बहुत थिक होता है। क्यों? क्योंकि यूटेरस तो ये सोचता है कि अभी ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो वो आके मेरे यूटेरस के वॉल पे वो अटैच हो जाएगा, तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हर बार यूटेरस, एवरी मंथ यूटेरस क्या हो जाता है? एकदम थिक हो जाता है विद द ब्लड वेसल्स। बट इफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डजंट टेक्स प्लेस, ओके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो दिस ओवम ऑल्सो डाइज आफ्टर 2-3 days। 2-3 days के बाद ओवम भी डेथ हो जाती है उसकी, और ये यूटेरस का वॉल भी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है ना। एंड लॉट्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द वेजिना ऑफ द फीमेल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द मंथली साइकिल। ओके, ये मंथली साइकिल है फीमेल्स में। एवरी मंथ दिस मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस एंड इट लास्ट फॉर नियरली 3 to 5 days, sometimes 7 days in some of the females. So let us see its explanation. The ovary produces 1 egg every month and the uterus prepares to receive the fertilized egg. यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर रखता है कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो मेरे वॉल पे अटैच होगा। और कैसे प्रिपेयर रखता है? इट्स वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए अपने वॉल को एकदम थिक और स्पॉन्जी बना देता है ब्लड के साथ। बट
But if the fertilization does not take place, then the uterus wall breaks. The wall of the uterus breaks and comes out of the vagina as the blood and mucus. The bleeding takes place, and this bleeding is called menstruation. This cycle takes place once in every month, and it is called menstruation. एंड स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म से हो गया, फिर ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, 9 मंथ्स के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ होगा, फिर चाइल्ड बर्थ के बाद वापस से एज यूजुअल फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर लास्ट टॉपिक of our this chapter, that is reproductive health. Students, we all know that in human beings the sexual contact takes place during the reproduction process. Okay, sexual contact होता है, उसके कारण ही reproduction होता है. But every time sexual contact is not good. There are many diseases which are transmitted through this sexual contact. Okay, some of these diseases are bacterial disease or some are viral disease. बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लाइक गोनोरिया एंड साइफिलिस. गोनोरिया एंड साइफिलिस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड डिजीज लाइक वार्स एंड HIV एड्स आर कॉज्ड बाय द वायरस. दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो हाउ टू अवॉइड सच डिजीजेस और इवन हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी. कई बार फीमेल्स को क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है. ओके, तो वो प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड करें. इफ़ दे डोंट टेक एनी प्रिकॉशनरी स्टेप्स, तो मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद इट इज़ बट ऑब्वियस दैट मेनी टाइम्स द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में टेक प्लेस. सो हाउ टू अवॉइड दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके, तो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के प्रोसेस को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स द प्रोसेस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, द प्रोसेस टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन. Okay, and the contraception can be done by 3 main methods. What are those 3 main methods? Barrier method, chemical method और surgical method. Barrier method, chemical method और surgical method. तो first of all is barrier methods. Barrier करना मतलब रुकावट करना, स्पर्म्स को और ओवम को मिलने ही नहीं देना. तो स्पर्म्स और ओवम मिलेंगे कैसे नहीं, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो मिलेंगे ही. तो उनको रोकने के लिए बैरियर मेथड यूज़ करते हैं, लाइक यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स. Males can use condoms on their penis during the sexual contact or diaphragm. Females can use diaphragm, females use करते हैं, और cervical caps. ओके, ये सब क्या होता है, स्पर्म्स को और ओवम को मिलने नहीं देते हैं. ओके, बैरियर क्रिएट करते हैं. इवन कॉपर टी. व्हाट इज अ कॉपर टी? इट इज़ अ डिवाइस, टी शेप का डिवाइस होता है जो फीमेल्स अपने यूटेरस में लगवाते हैं. ओके, वंस द copper tea is applied by the female in their vagina, they cannot become pregnant. ओके, जब तक ये कॉपर टी उनके वेजिना में रहेगा तब तक कितनी बार भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करे, दे कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट बिकॉज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस. इट कैन कॉपर टी कैन बी केप्ट फॉर नियरली 3-4 years also. नाउ वंस द फीमेल वांट्स दैट दे वांट अ चाइल्ड, देन दैट कॉपर टी कैन बी रिमूव्ड. ये सब डॉक्टर्स के थ्रू ही होता है. Okay, and then after sexual contact the female can become pregnant. So these are the barrier methods. Then comes chemical methods. Chemical methods मतलब medicines लेना, जैसे oral pills होते हैं. After sexual contact if the lady thinks that I don't want to become pregnant, तो वो कोई भी एक टैबलेट आते हैं इनके, उसको हम pills बोलते हैं. वो oral pills अगर ले लेते हैं तो then they don't become pregnant. Similarly vaginal pills are there. It is put inside the vagina. Okay, due to which the fertilization process doesn't takes place. So these are chemical methods. Then comes surgical methods. इसमें सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है. इसमें क्या होता है कि अगर मेल्स में ये ऑपरेशन करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी. मेल्स में क्या करते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा ना, उसमें आपने देखा वास डिफरेंस. वास डिफरेंस का क्या फंक्शन है, इट इज़ द ट्यूब कैरिंग द स्पर्म्स, है ना. स्पर्म्स को टेस्टिस से कैरी करने का काम कौन करता है, वास डिफरेंस. तो अगर वास डिफरेंस को कट कर देते, उसका स्मॉल पार्ट को कट करके उसको टाई कर देते, तो क्या होगा, स्पर्म्स आगे पास ऑन ही नहीं होंगे. ओके, दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी. ओके, दिस सर्जिकल मेथड इन मेल्स इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, वेयर द पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड. एंड इफ द सेम थिंग इज डन इन द फीमेल, फीमेल में कौन सा ट्यूब है जो ओवरी को कैरी करता है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब. ओके, और अगर फैलोपियन ट्यूब को स्मॉल पार्ट को कट करके उसको टाई कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी. ओके, उसके ओविडक्ट के पार्ट को कट करते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड
done in the males, and tubectomy is the surgical method done in the females and for contraception. In males, vas deferens, small part of the vas deferens is cut and tied, and in females small part of the fallopian tube is cut and tied. इस तरह से 2 मेथड का हम डिफरेंस यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Yes students, by this we have finished our chapter. You have to go through your textbook for the complete explanation, description, and you have to draw the diagrams also. जो textbook में diagrams है, all those diagrams are very important. Okay students, go through the chapter. Till then, thank you.